गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ का 7th चैप्टर पैकिंग जो है ये अभी अपन करने वाले हैं और इसको अभी मैं बिफोर यू रीड मैं अभी रीड करूँगी। डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? वॉट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एन्जॉय मोस्ट? हाउ डू you feel about having to pack for a trip? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need or that you can't find them easily? Does this make you angry or does it make you laugh at yourself? Now read this description of how the author and his friends pack. अब यहाँ पर पैकिंग के बारे में बताया है। जब भी अपन किसी ट्रिप पे जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं, किसी रिलेटिव्स क्या जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपन ऑफ कोर्स चीज़ें पैक करते हैं और अपने साथ अपना सामान लेके जाते हैं। कभी ऐसा होता है अपन सामान भूल जाते हैं, कभी अपन ले जाते हैं मगर वो ऐसी जगह रखी रहती कि अपन उसे ढूंढ नहीं पाते। तो अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, उसी के बारे में ये स्टोरी है। I said I'd pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things are there. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. John spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. Okay, अब यहाँ पर बताया है कि जो ऑथर है जिसने लिखा है उसने ये कहा दो लोगों को, जॉर्ज और हैरिस को, कि तुम लोग पैकिंग मत करो, मैं पैकिंग कर लूँगा और मुझे पैकिंग करना बहुत अच्छे से आता है। और वो दोनों एग्री भी कर गए इस बात पे। एक टेबल के पास बैठ गया, एक इजी चेयर पे बैठ गया और दोनों बैठ के अपना रिलैक्स कर रहे हैं और जो ऑथर है वो पैकिंग कर रहे हैं। This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, oh, you, here, let me do it. There you are, simple enough. Really teaching them, are you might say, they're taking it in the way. अब यहाँ पर जो ऑथर है वो ये चाह रहे थे कि वो हैरिस और जॉर्ज को ये यकीन दिलाएं और ये बताएं कि वो सुपीरियर हैं इस जॉब में और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं और उनको हर बार डायरेक्शंस दें कि तुम ऐसा करो वैसा ना करो। तो ये चीज़ें वो चाह रहे थे और कुछ ऐसा ही हो रहा था। नेक्स्ट पेज, दे डिड इरिटेटेड मी। देर इज़ नथिंग डज There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. अब यहाँ पर ये हो रहा था कि वो चाह रहे थे कि वो उनकी थोड़ी मदद करें मगर इधर पर ऑर्थर को अकेले ही पैकिंग करनी पड़ रही थी और वो दोनों साइड में बैठ चुके थे। I lived with a man once upon used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him a real good to look on at me messing about. Now I am not like that. I can't sit still and see other man slaying and working. I want to get up and so pretend and walk round with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. अब यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि उनका ये नेचर है कि ये बैठ के लोगों को काम करते हुए नहीं देख सकते। उनमें ऐसी एक एनर्जी है कि उनको पूरे टाइम लगता है कि वो सुपीरियर रहें, काम करें और दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देते रहें कि ऐसा करो ऐसा ना करो। तो इधर पर जो लोग बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते, इनको देखते रहते हैं काम करते हुए, वो लोग उन्हें ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो ऐसा पहले भी हो चुका है और अभी भी ऐसा ही हो रहा था।
However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last, and I sat on it and strapped it. "Ain't you going to put the boots in?" said Harris, and I looked around and found I have had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I've got the bag shut and strapped, of course. And George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. ओके अब यहाँ पर ये हुआ था कि जब ये पैकिंग कर रहे थे, इनने जब सोचा कि सारा सामान आ चुका है बैग में, इनने बैग को पूरा क्लोज कर दिया, स्ट्रैप कर दिया बैग को, तब पीछे से हैरिस ने कहा कि तुमने बूट्स तो अंदर डाले ही नहीं हैं, बूट्स मतलब जूते। तो ये देखकर जॉर्ज बहुत हंसने लगा और यही चीज़ ऑथर को इरिटेट करने लगी, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, आपकी गलती पे कोई हंसता है तो आपको ना बहुत इरिटेशन सी होने लगती है ये सोच के कि हाँ मैंने गलती तो करी है और उस पर कोई हंस भी रहा है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा बुरी लगती है। I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. अब उनके दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया कि क्या उनने टूथब्रश रखा है, और रखा है तो कहाँ रखा है। तो ये चीज़ उनको अचानक उनके ख्याल में आई। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. And in the morning, I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upwards for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. Okay, अब यहाँ पर उनको हर बार ये चीज़ हॉन्ट करी है कि उनने अपना टूथब्रश अपने साथ लिया है कि नहीं। तो अक्सर ये करते थे कि जब भी कहीं जाना रहता था तो पहले ब्रश करने से सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश रख देते थे बैग में, फिर जब उन्हें ब्रश करना पड़ता था बैग से निकालते थे, करते थे और भूल जाते थे, और एंड मोमेंट में उनको अपने हैंकरचिफ में उसको रैप करके लेके भागना पड़ता था स्टेशन, क्योंकि वो लेट हो रहे होते थे। तो ये इधर पर सिचुएशन है, अक्सर ऐसा हुआ है कि वो नींद में से उठ जाते हैं ये सोच के कि उनने ब्रश रखा है कि नहीं। अक्सर ऐसे लोगों के साथ होता है कि कोई चीज़ उनको हमेशा हॉन्ट करती है या परेशान करती है कि उनने ये वाली चीज़ रखी कि नहीं, या ट्रेन में बैठ गए और फिर लग रहा है कि आपने ये चीज़ शायद मिस कर दी। तो वो चीज़ सोच सोच के इंसान परेशान होता रहता है। Of course, I had to turn every mortal thing out now. And of course, I could not find it. I rummaged the thing up into much the same state that day. अब यहाँ पर ये सर्च कर रहे हैं, इनने सारा सामान बाहर निकाल दिया है सूटकेस से, और ये बहुत ही सर्च, बहुत हड़बड़ी में सर्च कर रहे हैं और अपने टूथब्रश को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 84. Must have been before the world was created and when chaos reigned. Of course, I found George and Harris 18 times over. But I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. अब यहाँ पर हैरिस और जॉर्ज का ब्रश उन्हें बार बार मिल जा रहा था, मगर उन्हें खुद का ब्रश नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। बाद में उन्हें एक जूते के अंदर उनका ब्रश मिला, फिर उनने उसे फिर से रीपैक करके रख दिया। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't.
and I slammed the bag shut and strapped it, and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. Got shut up finally at 10:05 p.m. and then they remembered the hampers to do. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours' time and thought that he and George had better do the rest. And I agreed and sat down and they had a go. ओके अब यहाँ पर इनने कहा है कि जब सब कुछ हो चुका था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद सोप रह गया है या जो साबुन होता है तो वो छूट गया है, उनको ऐसा लग रहा था, तो ऑथर ने कहा कि कुछ नहीं होता, अगर साबुन छूट भी गया हो तो कुछ नहीं होता, मैं बैग क्लोज कर रहा हूँ। उन्हें क्लोज कर दिया। बाद में उन्हें ध्यान आया कि उनका जो चश्मा है वो बैग में रह गया है और उनने फाइनली उसे रीओपन किया। अब यहाँ पर हैरिस और जॉर्ज ने कहा कि जो भी चीज़ें हैं अब हम पूरी जो चीज़ें हैं हम खुद रख देंगे, आप साइड में बैठ जाओ और पूरे 12 घंटे हैं अपने पास तो अभी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें थी और जो चीज़ें बच भी गई थी वो सारी चीज़ें उनने ली और उसमें डाल दी। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited, with the exception of the George Harris in the worst packer in this world, and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that the things would soon become exciting. अब यहाँ पर ये हुआ था कि जब हैरिस और जॉर्ज ने सब कुछ को पैक करना शुरू किया था तो वो ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि देखो हम आपसे ज़्यादा अच्छा पैक कर सकते हैं। और ऑर्थर ये मन में सोच रहा था कि जो भी चीज़ें हैं अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि इधर पर इतने सारे खाने की चीज़ें हैं जो इन्हें पैक करनी है, प्लेट्स है, ग्लासेस हैं, बॉटल्स, केटल्स, जार्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये कैसे करेंगे। ये चीज़ देखने में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये लोग वर्स्ट पैकर, इन्हें पैक करना आता नहीं है। तो ये बैठ के देख रहे थे। It did. They started with breaking a cup. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. अब यहाँ पर जैसे ही हैरिस और जॉर्ज ने शुरू किया अपनी पैकिंग, सबसे पहली चीज़ उनने जो गलती करी वो है कप तोड़ना। उसके बाद जैसे ही और चीज़ इंटरेस्टिंग होती गई तो वहाँ पर हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को टोमेटो के ऊपर रख दिया जिससे वो स्क्वैश हो गया और टोमेटो को टीस्पून से, चम्मच से निकालना पड़ा। And then it was George's turn and he trod on the butter. और सबसे इंटरेस्टिंग बात आई कि जॉर्ज जो नीचे बटर रखा था उसके ऊपर चढ़ पड़ा और बटर उसके पैर पे लग गया। I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. और वो टेबल के साइड में बैठ गया ऑथर और वो देख रहा था कि कैसे ये लोग परेशान हो रहे हैं, जॉर्ज और वो देख रहा था कि कैसे जॉर्ज और हैरिस परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 86. It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them, and they couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and get heavy things on top and smash the pies in. अब जॉर्ज और हैरिस को भी पैकिंग बिल्कुल नहीं आती थी, वो बहुत गलतियां कर रहे थे। उनने पाई जो होती है, खाने की पाई जो सॉफ्ट होती है, उसे नीचे रख दी थी, ऊपर भारी चीज़ें रख दी थी, तो जो पाई थी वो स्मैश हो गई थी, पिचक चुकी थी और बहुत दिक्कत हो रही थी। ऐसी चीज़ें जो
उनको चाहिए थी वो पीछे रख दे रहे थे और उनको दिख ही नहीं रही थी जब मिलनी थी। तो बहुत दिक्कतें आ रही थी, उनको भी पैकिंग नहीं आती थी। और जैसे ऑथर ने गलतियाँ की थी कुछ कुछ, वैसे ही ये भी गलतियाँ कर रहे थे।